Club of Lucknow are here in big number. I wish more could come, but due to some reasons they are not here. We have gathered here for our annual general meeting, especially to welcome our new chairman, Mr. Manoj Kumar Singh, the Chief Secretary of Uttar Pradesh. As you all must be aware, the Chief Secretary is the chairman of the Club of Lucknow. This tradition started with the former Chief Secretary, Mr. T.S.R. Subramanian. The immediate past chairman, Shri Durga Shankar Mishra, relinquished office of the Chief Secretary following the superannuation on 30th June 2024. Mr. Manoj Kumar Singh succeeded him thereafter. The Club of Lucknow feels proud to welcome him and hopes to receive his guidance and support in the governance and smooth functioning of the club. I also extend a warm welcome to Mr. Anup Chandra Pandey, Senior Bureaucrat, Mr. J.S. Mishra, and Mr. N.N. Upadhyay, also an IAS retired officer. A few words about Mr. Manoj Singh. Mr. Manoj Singh, a seasoned officer of the Indian Administrative Service from the 1988 batch, is of UP cadre. I also welcome Mrs. Manoj Singh, and it's a pleasure to have you here, ma'am. So, during his distinguished career, Mr. Singh has served in critical administrative capacities. His leadership was particularly noteworthy during the state's COVID-19 management efforts. I now invite Mr. Manoj Kumar Singh, Mr. Alok Ranjan, Mr. Anup Chandra Pandey, Mr. J.S. Mishra, and Mr. N.N. Upadhyay to come for lighting the lamp. Thank you. I now invite and request Mr. Manoj Kumar Singh to take a seat on the dais, and please join Mr. Alok Ranjan, Mr. Anup Pandey, and Mr. Sharad Pradhan. I request Mr. Alok Ranjan to welcome Mr. Manoj Kumar Singh and Mrs. Manoj Kumar Singh and Mr. Anup Chandra Pandey with the bouquet of flowers. I request Satna Agarwal to come and present the shawl to Mrs. Manoj Kumar Singh. And now over to Mr. Gopal Sinha for the annual report of the Club of Lucknow. Thank you, Rupali ji. Good evening, ladies and gentlemen. क्लब ऑफ लखनऊ की आज इस एनुअल जनरल मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी ने इस क्लब के अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है हमारे निवेदन पर. थैंक यू. एंड दिस इज़ इन कॉन्फर्मिटी विद द ट्रेडिशंस ऑफ दिस क्लब. महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं.
हमें चेयरमैन साहब की अनुमति से पिछले वर्ष यानी 2023-24 की रिपोर्ट हाउस के समक्ष रखना चाहूँगा। ये बहुत ही आवश्यक फॉर्मेलिटी है, इसको रखना आवश्यक है, लेकिन संक्षिप्त में रखूँगा। पिछले वर्ष 2023-24 में सबसे पहले 19 जुलाई 2023 को क्लब की एजीएम हुई थी, जिसकी मिनट्स आज इस मीटिंग में कंफर्मेशन के लिए रख रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। मिनट्स इस प्रकार हैं। 31 मार्च 2023 को तत्कालीन चेयरमैन श्री R.K. तिवारी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और भूतपूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सेवानिवृत्त हो गए थे। अतः तत्कालीन मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने इस क्लब के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया और इस मीटिंग में जो 19 जुलाई को हुई थी उसमें उनका स्वागत किया गया। तदनुसार पूर्व में 14 अक्टूबर 2022 में एनुअल जनरल मीटिंग में गठित मैनेजमेंट कमेटी में मॉडिफिकेशन के साथ हाउस के रिकमेंडेशन पर श्रीमती साधना अग्रवाल जी को मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्य के रूप में एडिशनली कोऑप्ट किया गया। क्योंकि क्लब का पुराना पता क्लब के फाउंडर सेक्रेटरी जनरल लेट श्री R.N. भार्गव जी की कंपनी के ऑफिस का था और वो परिसर काफ़ी समय पहले बंद हो चुका था, इसलिए मेरे निवास को क्लब के पते के लिए उपयोग में लाए जाने की हाउस द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। चेयरमैन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी डिलीवर्ड ए टॉक ऑन हिज एक्सपीरियंस एज ए सीनियर ब्यूरोक्रेट and his role in implementation of various projects of national and state importance. The meeting ended with vote of thanks by its Vice Chairman, Shri Sharad Pradhan ji, and followed by dinner. If you all agree, these minutes of meeting of last AGM, dated 19 July 23, may be considered confirmed and approved. Thank you. Now a brief on other activities of last year. क्लब की पिछले वर्ष दूसरी मीटिंग हुई 23 सितंबर 2023 को, जिसमें डॉक्टर संदीप कुमार, एक्स प्रोफेसर सर्जरी KGMU एंड एक्स फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एम्स भोपाल द्वारा हेल्थ और वेलनेस पर टॉक प्रस्तुत की गई थी। फिर 2024 के नववर्ष के स्वागत के लिए 6 जनवरी 2024 को क्लब के सदस्यों का गेट टुगेदर हुआ, जिसमें सदस्य और परिवारजनों द्वारा गीत, संगीत, शायरी, पोइट्री और स्टोरी टेलिंग आदि मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पिछले वर्ष की आखिरी मीटिंग हुई होली के त्यौहार के बाद वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च 2024 को। इस मीटिंग में क्लब के सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी साहित्यकार श्री जयशंकर मिश्रा जी द्वारा हैप्पीनेस एंड जॉय ए की टू वेलनेस पर बहुत ही रोचक टॉक प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद क्लब के एक दूसरे सदस्य चंद्रशेखर वर्मा जी द्वारा कुछ फन रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई, जिसे हाउस द्वारा बहुत ही एंजॉय किया गया था। मुझे आप सभी लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस क्लब का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो 2022 दिसंबर में समाप्त हो गया था, अब पुनः 5 साल के लिए यानी दिसंबर 2027 तक के लिए रिन्यू हो गया है और इसका सारा श्रेय शरद प्रधान जी को जाता है। पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सबमिट कर दी गई है और उसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न भी भरने की कार्रवाई चल रही है। पिछले वर्ष हमने अपने 2 सदस्यों को खोया भी, प्रदेश के भूतपूर्व लोकायुक्त जस्टिस S.C. वर्मा जी, जो हमारे पैट्रन थे, और शहर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद शर्मा जी को। अभी कुछ महीने पहले हमारे एक अन्य साथी वरिष्ठ मीडिया जर्नलिस्ट श्री पंकज वर्मा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। मैं क्लब ऑफ लखनऊ के अपने सभी साथियों की ओर से इन दिवंगत सदस्यों को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पिछले कुछ समय हमारे क्लब से हमारे बीच कुछ नए सदस्य भी जुड़े, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। Our management committee stands slightly modified to the extent that now our chairman is Shri Manoj Kumar Singh ji, Chief Secretary UP Government. Other members are Shri Sharad Pradhan ji, Vice Chairman, myself Gopal Sinha, Secretary General, and members are Shri Sumer Agarwal ji, Shri M.S. Gulati ji, Shri V.B. Singh ji, श्री S.K. वर्मा जी, श्री मुजम्मिल हसन साहब, डॉक्टर C.M. नौटियाल जी, कर्नल फसीह अहमद एंड मिसेस साधना अग्रवाल जी। और अंत में मैं आप सभी का निरंतर दिए गए सपोर्ट और क्लब की एक्टिविटीज़ में सक्रियता के साथ भागीदारी करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी का ये स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहेगा। मैं पुनः अपने अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और जिस तरह से आज आप समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, ऐसा मौका हम लोगों को हमेशा मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अक्सर मिलता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हमारे इस क्लब की एक्टिविटीज़ उत्कृष्ट तरीके से चलती रहेंगी। धन्यवाद। Thank you, Gopalji. And as Mr. Sinha pointed out, Club of Lucknow organizes various literary, cultural, and social activities. We also felicitate those doing selfless and exemplary work for the society. Our first deserving candidate for this evening is Varsha Verma. I'll just say a few words about her, introduce her. Varsha Verma, a postgraduate in English literature, is a Lucknow-based social worker and poet who runs a non-profit organization called Ek Koshish Aisi Bhi. Her work came to prominence during the COVID-19 pandemic when she began providing free assistance to families transporting mortal remains from hospitals to cremation grounds and performing their last rites, all while risking her own life. During the second wave of COVID-19 pandemic, Lucknow, like other cities, witnessed huge number of deaths. Varsha lost her best friend to COVID-19, and her body kept lying at the hospital's morgue for hours before no transportation was available to carry it to the crematorium. Those who agreed were asking for prohibitive sums of money, which the family couldn't afford. The incident affected Varsha so much that the next day she rented a van, hired a driver, and headed to the same hospital with a placard that read Nishulk Shav Vahan, free vehicle for carrying the dead. Till date, Varsha has cremated over 5,600 plus bodies. Varsha has been actively involved in various social causes. Now, through her non-profit organization, she provides free hearse cars and ambulance service to needy families throughout the state of Uttar Pradesh. She helps in the rehabilitation of destitutes, trains young women and girls in self-defense, organizes blood donation camps and arranges blood donors and educates underprivileged children. She delivers awareness lectures on postnatal care to new mothers at government hospitals and distributes hygiene kits. She provides ration kit to cancer patients at Ram Manohar Lohia Hospital, Lucknow, and distributes health kits to kids at Pediatric Cancer Department of KGMU, Lucknow, since 2016. Her laudable work has been prominently covered by national and international media like Femina India and Mama Earth, Forbes India, Reader's Digest, and many more. I feel honored to invite Varsha Verma to receive this award for her outstanding service. Our next candidate is Mr. Rohit Kumar Shrivastava, popularly known by his moniker Meet or Meet, is a young enthusiast whose passion for literature led him to himself becoming a renowned poet, writer, and a lyricist. A personal incident while traveling from Delhi to Lucknow on a train proved to be a catalyst which compelled him to take up social work as his chief engagement. Since then, he has earnestly strived to create a better world by reaching out to one of the most vulnerable sections of the society, the visually impaired, and dedicated his life for the society. He is the vision behind his Meet Welfare Foundation, which came up in 2007. Although Rohit was always interested in literature, as he had spent his childhood and part of his youth under the parental guidance of famous poet Padma Shri Bekal Utsahi.
Apart from his pioneering work in the field of assisting the visually impaired with knowledge and skill development, the MWF has also taken initiatives to promote health awareness through on-ground campus for auditory difficulties, eyesight issues and dental problems, blood donation, eye donation, etc. Prominent contributions for the benefit of visually impaired children are: he introduced the country's first ever Braille Metro Smart Card Lucknow Metro in 2021. It's a feat which has also been greatly appreciated by the government of Indonesia. Installation of the very first Braille Corridor and Braille Information Center, the country at the Lucknow Zoological Garden in 2018. Establishment of several Braille libraries at Lucknow, Mumbai, Jabalpur and Krishnanagar, Nepal. Conducted the first electoral awareness campaign for the visually impaired in Lucknow in February 2022. Rohit Kumar Meet on behalf of MWF is associated with the Indian Railway to help make journey more accessible for the visually impaired. He is currently on the advisory board of North Eastern Railway for the same. His passion keeps him going from success to success, and gradually he is reaching close to his aim of having the biggest publication house in the country, which will be dedicated to readers without eyes. His aim is to serve the visually challenged till eternity. I invite Rohit Meet to come and accept the honor. And now our third fully deserving Sansthan is Drishti Samajik Sansthan. Established in the year 1990, Drishti Samajik Sansthan represents one of the leading organizations working for children with developmental disabilities, neurological disorders, physical and multiple challenges. It was started by late Srimati Neeta Bahadur, who was snatched away in 2014 from these children by a sudden and fatal bout of cancer. It is now headed by her husband, Shri Dhiresh Bahadur, who retired from the State Bank of India. While in service, he chose to forego several promotions to be able to stay on in Lucknow to serve the inmates at Drishti. Their son, Atharv, and daughter-in-law, Shalu, are like parents to these children and are looking after them very well. Its residential facility houses 2,066 abandoned multiple challenged children ranging from less than 1 year to 18 years of age. This is perhaps the largest of its kind in the country. The scope of its work impacts the whole state of Uttar Pradesh and outside also. At Drishti, children are imparted both life skills and vocational training such as weaving, artificial jewelry making, painting, embroidery, Zardozi work, greeting cards making, ornamental and gel candle making, and 10 M pistol shooting, etc. Drishti embarked on the journey of exposing around 20 girls with multiple challenges directly to the retail venture through its D Cafe 16. Started around 5 years ago, D Cafe 16 is an Amul preferred outlet cum cafe run by these specially trained girls. They prepare all types of snacks, coffee, tea, shakes, fruit juices, etc. Taking this venture a step further, the organization launched Drishti Pures, a cold-pressed oil and spices processing unit. It is being run by around 15 multiple challenged boys, and to the best of our knowledge, both these endeavors are the first of their kind in the country. Deservingly, the list of awards conferred on Drishti Samajik Sansthan is endless. Club of Lucknow feels privileged
to honor Drishti for its outstanding contribution towards making the lives of these very special children happy. I invite Atharv and Shalu to come on stage and accept the honor. I now request the Chief Secretary and the Chairman of the club, Mr. Manoj Kumar Singh, to guide the club with his views on UP's vision. नमस्कार। आदरणीय जे.एस. मिश्रा साहब, आलोक रंजन साहब, अनूप चंद पांडे साहब, शरद प्रधान जी, क्लब लखनऊ के सभी सम्मानित सदस्य साथियों, ये मेरे लिए एक ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि मैं आज आपके इस क्लब का चेयरमैन आपकी सहमति से बनाऊं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा शरद प्रधान जी का और सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज आप सबके बीच आकर और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बात करने का और एक विज़न जो मैं या सरकार ने सोच रखा उसके बारे में आपको कुछ बताने के लिए। साथियों, यूपी में एक पोटेंशियल है, सिर्फ इस देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक गाइडिंग फोर्स और पावर हाउस बनने का, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें। हम लोगों का एक विज़न है कि यूपी में एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जिसमें हर वर्ग के लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकें। उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग से आते हों, जो उनकी पोटेंशियल है उसको वो हासिल कर सकें, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें। मैं आपके सामने 5 पिलर्स की बात करूंगा जिस पे ये विज़न टिका हुआ है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पिछले 6 वर्षों में अपनी पर कैपिटा जीडीपी को 2 गुना किया है। ये देश की तुलना में आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लगभग $2300 है और यूपी में ये 7 साल पहले सिर्फ $650 हुआ करता था और पिछले 6 वर्षों में ये अभी $1300 पे पहुंचा है। अभी बहुत बड़ी यात्रा करनी है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसने 6 सालों में अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम को 2 गुना किया है। ये नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह की हमारे पास हैं, जिस तरह का मैन पावर है, लगभग 65% लोग वर्किंग एज ग्रुप में हैं। इस तरह की डेमोग्राफी शायद ही किसी के पास है। अगर हम इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, 90 लाख MSMEs शायद ही किसी प्रदेश के पास हैं। अगर इनको हम ठीक तरह से मॉडर्नाइज करें, ठीक तरह से इक्विप करें, तो ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में सामने आ सकते हैं। स्किलिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। 25 करोड़ की आबादी में जो भी 65% वर्किंग एज के लोग हैं, उन सबको आप कुछ भी कर लें, सिर्फ अपने प्रदेश में काम नहीं दे सकते हैं और ज़रूरत भी नहीं है। हमें उनको इस तरह स्किल करना है कि वो देश के दूसरे राज्यों में जाएं और दुनिया के दूसरे देशों में जाएं। इसीलिए सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किलिंग पे है और लगभग 110 ITIs को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को हैंडओवर किया गया है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इनको ट्रेन करें।
बट मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के यहाँ किसी भी काम में सक्सेस का रोल 5% होता है, 95% इम्प्लीमेंटेशन का रोल होता है। अब वो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट होता है वो तय करेगा कि हम कितनी अच्छी तरह से उसको स्किलिंग दे सकते हैं और चला सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पिलर है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का है। यूपी ऑल सेड एंड डन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो लोगों को नहीं मालूम है या लोग उस तरह से नहीं देखते हैं। पूरी दुनिया में जो ज़मीन है उसके सिर्फ 10% हिस्से पे खेती होती है, यानी 90% जो हिस्सा है वो बर्फ़ है, जंगल है या इस तरह का रेगिस्तान है। तो दुनिया में 10% अवेलेबल लैंड सिर्फ कल्टीवेशन होता है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 45% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 75% है। 75% ज़मीन पे खेती होती हो, ऐसा दुनिया में कोई और भूभाग नहीं है जहाँ इस तरह की सुविधा हो। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट पानी का होता है, इरिगेशन का होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपने 1 एकड़ खेत को सिंचाई की सुविधा दी तो आप एक गरीब परिवार को गरीबी से बाहर ला सकते हैं। और मोहम्मद यूनिस की शुरुआत यहीं से हुई थी। जो माइक्रो फाइनेंस उन्होंने शुरू किया था तो बांग्लादेश में खेतों में इरिगेशन के लिए पंपिंग सेट को वो फंड करते थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट उनका यही था, जहाँ से फिर वो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो लेंडिंग और फिर एक बार उन्होंने वो नोबेल प्राइज़ तक पहुँचे। तो ये इरिगेशन के बारे में दुनिया में जो खेती हो रही है आज की तारीख में, उसमें 21% एग्रीकल्चर इज़ अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 55% है। 55% भारत की जो खेती है वो सिंचित है। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 86% है। 86% उत्तर प्रदेश की खेती इरिगेटेड है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि हिंदुस्तान का जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसका 25% यूपी के पास है। लोगों को ये लगता है बड़ा बड़ा झील और नदी देखकर कि पानी उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन 85% पानी ग्राउंड वाटर के रूप में है जो स्वीट वाटर है, और ऊपर जो पानी दिखता है वो सिर्फ 15% है। और हम लोगों के यहाँ गंगा, यमुना इस तरह की नदियाँ हैं जिनकी वजह से पूरे देश का जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसका 25% उत्तर प्रदेश में है। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को एग्रीकल्चर को अब दूसरे लेवल पर ले जाने का। इतनी सुविधाएँ, इतनी बेहतर माहौल होने के बाद, क्लाइमेट और सॉइल होने के बाद भी किसान जो खेती से जुड़ा हुआ है वो आज भी उस तरह से आर्थिक दृष्टि से स्ट्रांग नहीं है। हमें अब इस एग्रीकल्चर को एक दूसरे लेवल पे ले जाना है। वो मॉडर्नाइजेशन करने के साथ साथ वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्रूट कल्टीवेशन और एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। अभी आप सबको पता होगा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वो मार्च में उसकी फ़्लाइट शुरू होगी। वहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कार्गो हब बनाया जाए सिर्फ एग्रीकल्चरल, खास करके हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्ट होती है वो या तो सी रूट से होती है या फिर जो पैसेंजर प्लेन है उन्हीं के बेली में कार्गो के रूप में जाती है। जबकि छोटे छोटे देश जो इजराइल वगैरह हैं, जहाँ किबुट्स और मोशाब का सिस्टम है, वहाँ पे हर मोशाब में और हर किबुट्स में यू विल फाइंड कि एक एयर स्ट्रिप है, और जो भी वो ग्रीन हाउस में पैदा करते हैं सीधा वहाँ हार्वेस्टिंग के बाद उसको लोड करते हैं और यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। यूपी में जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के पैदा करने का, अगर हमने इनको एक्सपोर्ट किया और बेहतर प्राइस दिया तो यहाँ किसान कुछ भी और किसी भी कंडीशन में पैदा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो हमें अब एग्रीकल्चर को उस लेवल पे ले जाना है। तीसरा पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जो एक्सप्रेसवेज हैं उसका 45% शेयर उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। वो मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक आएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद दिसंबर में उसका मेन कैरेजवे कुंभ के पहले शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश का शेयर एक्सप्रेसवेज में लगभग देश का 55% एक्सप्रेसवे यूपी में होगा। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। आज की तारीख में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और उसके पास 5000 एकड़ ज़मीन है और 6 करोड़ पैसेंजर्स को एक साल में वो वहाँ से फैसिलिटेट करते हैं। ये जो एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है वो 11,000 एकड़ ज़मीन पे बन रहा है। जब फाइनली तैयार होगा 5 रनवे होंगे और ये 22 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल
वो हैंडल करेगा। आप समझ सकते हैं दिल्ली की आज की जो क्षमता है उससे लगभग 3-3.5 गुना बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है। एक बहुत ही नायाब सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उस पर जहाँ भी इंटरचेंज है, लगभग 31 इंटरचेंजेस हैं, उन सभी इंटरचेंजेस पे 300, 400, 500 हेक्टेयर ज़मीन लेकर और इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने की कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में यूपीडा ने लगभग 6000 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया और 2-3 इंडस्ट्रीज़ भी इस पे अभी आई हैं, जैसे कैनपैक वगैरह, स्वीडन की जो कैन बनाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और नई पहल है। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पिलर मैं मानता हूँ वो है एजुकेशन और हेल्थ का। कोई भी दुनिया में देश विकसित नहीं हो सका है या आगे नहीं बढ़ सका है अगर उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, और ये हमारा सबसे वीक पॉइंट है। आज की तारीख में 30% स्टंटिंग है, 32% के आसपास वेस्टिंग है बच्चों में। तो ये न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज जो ये बच्चे जहाँ 25-30% स्टंटिंग और वेस्टिंग है, ये 2047 जब हम विकसित होने की बात कर रहे हैं तो ये पीक वर्कफोर्स होगी। तो इस तरह के वर्कफोर्स को लेकर कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। उसी तरह जो शिक्षा की हम लोग की वर्तमान व्यवस्था है, सरकार के जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें लगभग 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा 1,32,000 स्कूल हैं। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है गाँव में शिक्षा पहुँचाने का, उसमें हम लोग स्कूल को बच्चों तक ले गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बच्चे स्कूल में लाए जाते हैं। और ये काम हम लोग कर रहे हैं पिछले 40 साल से। अब इसमें गवर्नमेंट ने इसको एक सोचा है, रिव्यू किया है, क्योंकि ये अब मान लिया गया है कि 2 कमरे, 200 बच्चे, 6 सब्जेक्ट, 2.5 या 3 टीचर, इस स्कूल का कोई बहुत बड़ा कायाकल्प नहीं किया जा सकता है, आप कुछ भी कर लें। तो अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है। एक मॉडल 18 मंडलों में शुरू किया गया है, अटल आवासीय विद्यालय करके। लेकिन उसमें लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पे वो बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन वो रेजिडेंशियल है। 2 करोड़ बच्चों को रेजिडेंशियल नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार की एक ये सोच है कि हर न्याय पंचायत में, यूपी में 8000 न्याय पंचायत हैं और एक न्याय पंचायत में 8 से 10 गांव आते हैं। हर न्याय पंचायत में करीब 20 से 25 एकड़ ज़मीन ली जाए और 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और वहाँ बिल्डिंग बनाई जाए, जिसमें UKG से लेकर और क्लास 12 तक के अलग अलग 3 कॉम्प्लेक्सेस बने, और पूरे न्याय पंचायत में जितने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल हैं उनको कोलैप्स करके और वहाँ के टीचर और बच्चों को वहाँ पे लाया जाए, और उन स्कूलों में एक सेक्शन पूरा हो, डिवीज़न हो, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का देखे, इलेक्ट्रिक बसेज हों, गांव से बच्चों को लेकर वहाँ जाएं। एक पूरा सेक्शन हो जो केटरिंग को देखे, ताकि टीचर्स पढ़ाई करें और ये पूरा मिड डे मील के काम करें। और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूलों में पैदा किया जाए कि स्कूल आवर्स के बाद उसको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए बाकी वहाँ के इलाके के लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना करके है, और इस बार अभी इस साल लगभग 57 इस तरह के स्कूलों का निर्माण का बात है, और ये फाइनली इसके बाद तहसील लेवल पे जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक, और फिर हर न्याय पंचायत पे, और 8000 न्याय पंचायतों पे जिस दिन इस तरह के स्कूल बन जाएंगे तो उस दिन ये 1,32,000 स्कूल जो अभी 2 करोड़ बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो सभी इन 8000 स्कूलों में आएंगे। ये सरकार की सोच है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा और ये काफ़ी ज़रूरी है इस व्यवस्था को करने के लिए। 5वां और अंतिम पिलर हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो कल्चरल और सोशल हार्मनी का है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना तहजीब की बात सभी लोग कहते हैं, और जो इस हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज उत्तर प्रदेश का है, इस तरह की विरासत शायद ही किसी और प्रदेश के पास है। एक स्पिरिचुअल कैपिटल भी हम लोगों के यहाँ है, और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पॉपुलेशन के अंदर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्रोग्रेस के लिए और रिजिलियंस पैदा करने के लिए। तो ये एक सोच है, ये एक सपना है जिसको साकार करने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन ये किसी भी सरकार के अकेले के बस की बात नहीं है। इसमें सरकार की, बिजनेसेस की, इंडिविजुअल सिटीजन्स की, सभी की योगदान और सभी की भागीदारी की इसमें ज़रूरत होती है। ये मैं बातें कुछ कह रहा था, लेकिन मैं एक आपको हकीकत की बात भी बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले अगर कुछ लोगों ने पढ़ा हो, एक लक्ष्मीना मिंट पेपर में छपा था, ये बहराइच की एक घटना है। लक्ष्मीना नाम की महिला, वो डिलीवरी के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई और एक बेबी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उस हॉस्पिटल ने ये कहा कि 4000 रुपये दीजिए, फिर हम आपको जाने देंगे। उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो गांव में गए, उनके
पति कुछ पैसा लेने की कोशिश की, उधार लेने की कोशिश की, लोगों ने उधार नहीं दिया। फिर आपको यकीन नहीं होगा उस परिवार ने क्या किया, उसने अपने 2.5 साल के एक बेटे को किसी को बेच दिया और वो 20,000 रुपये उन पे मिले और फिर वो 4,000 अदा करके घर पे आए। सरकार की नोटिस में आया तो उसके बाद वो लोग अरेस्ट हुए, बच्चा उनको वापस किया गया। लेकिन ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये स्थिति हम लोगों के यहाँ आज भी कुछ परिवार फेस कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी हम लोगों के दिमाग में और जहन में होनी चाहिए। हमें ये सवाल पूछना चाहिए, हमने पूछा भी कि उसके पास राशन कार्ड क्यों नहीं था, उसके पास आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं था, और जो हम दावा भरते हैं कि हमारे हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जो निःशुल्क सेवा देते हैं, तो उन्हें निःशुल्क हमारे लिए तो नहीं करना, ऐसे ही परिवारों के लिए था। वो परिवार उन अस्पतालों में क्यों नहीं गया, वो प्राइवेट जगह पे क्यों गया। तो जैसा मैंने कहा था कि ये 5% पॉलिसी की बात है, लेकिन 95% इम्प्लीमेंटेशन की बात है। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की लक्ष्मीना या इस तरह के परिवार इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का सामना न कर सकें। इसलिए लाख प्रगति कर लेने के बाद भी एक बहुत लंबा रास्ता और फासला तय करना है, और ये तभी संभव हो सकेगा जब आप जैसे लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग और जो भी बिजनेसेस और सभी सिटीजन लोग हैं, सभी लोगों का योगदान इस विज़न को पाने के लिए मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़रूरी और अहम बातें बताई और सबको ये मालूम हुआ और खुशी हुई है कि यूपी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब हम अनुरोध करेंगे श्री आलोक रंजन जी से, जो हमारे पहले चेयरमैन रह चुके हैं क्लब के, कि कुछ शब्द बोले आगे। Chief Secretary Manoj Kumar Singh, his wife Rashmi Singh, N.N. Upadhyay sir, Jaishankar Mishra, Anup Pandey, Sharad Pradhan, and all my friends and acquaintances who are all sitting here in this hall today. Well, it's a pleasure that we are welcoming Manoj Singh here today in this club. First of all, मैं आपको बताना चाहूँगा मनोज, ये इंटरेस्टिंग किस्सा जब दुर्गा शंकर मिश्रा आए, दुर्गा शंकर मिश्रा सेड कि मैं भाई ये क्लब में विश्वास नहीं करता, क्लबिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं नहीं आऊँगा। देन यू हैव टू बी टोल्ड दैट दिस इज अ क्लब विद अ डिफरेंस। दिस इज नॉट अ क्लब लाइक वेर यू ओनली गो एंड हैव अ ड्रिंक और प्ले कार्ड्स and then come back. This is a different kind of a club altogether. This is where people get together and they talk about issues. There are talks on various important, issues facing the country or the society or the state. Cultural activities are there, social activities are there, and so much more is done out here. And so many people out here come with, different viewpoints, different knowledge, and they get together out here. And this is really some place where a lot of thinking gets done. A lot of thinking about this country and the state gets done while in this club. So this is a club with a difference. The first point I want to tell you, and that is why always traditionally the chief secretary has been the chairperson of this club, because he has to provide the leadership in which direction the club will do the thinking or how they will, tackle the various issues facing the state government in particular, and what should be done for the future, and there should be free dialogue and debate out here. I can only say for all of you, I don't know how many of you are familiar with Manoj Singh, but I have been, he's been my colleague. He's one of the most dashing and dynamic officers of the state. About that there is no doubt. I have seen his working at very close quarters, and he's the type of person who, जैसे उन्होंने अभी कहा ना, implementation. He's an implementation man. He gets things done. Go-getter, as you would like to say. He believes in that. He's not just ideate or come out with the policy or come out with the strategy, but how that strategy is going to be implemented at the field level to actually benefit the people. That is what he's concerned with. और मैंने तो इनको हमेशा एक बात ये देखी थी, when I was, used to observe his working, he was always very quick in his decision making. All of you must be having some of you have this, not all, some of you must be having this impression कि गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग थोड़ा धीरे करते हैं, but that is not true. And if you observe Manoj, for instance, he is quite very quick in his decision making. and हम बिल्कुल जो है आप प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे, by the time you finish the problem the decision would have come. So that is the kind of the officer he is. So I am sure he will do a lot of good for the state of Uttar Pradesh. He will contribute a lot, and as he has pointed out the 5 pillars for the development of the state, rightly he has pointed out, from infrastructure to economic development to agriculture to health and education, everything. And what I liked was about he is so candid about what is the position of health and education in the state, what needs to be done to improve it, how we are trying to improve things, what needs to be further strengthened
He was quite candid about it. He was not, not trying to say something कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या हम लोग सबको टॉप पे पहुंच गए. जहाँ टॉप पे पहुंच गए वो भी बताया और जहाँ अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है, that also he pointed out. So that kind of an approach is a positive approach. That's the approach which a leader must have. With that kind of an approach, you will solve the problems, you will make the state move forward, and I'm sure under his leadership, this state will prosper, and certainly, and this club will also witness their chairman, doing a lot for the state, and I feel proud of what he's doing. So with those things, I welcome Manoj as the chairperson of this club, and his wife also here today, and all of you. I wish you all the best, and thank you very much for coming. Thank you. Thank you, sir. And now I request Mr. Anup Pandey to come and say a few words. Chief Secretary Shri Manoj Kumar Singh ji, Alok Ranjan Saab, Jai Shankar Mishra ji, N.N. Upadhyay Saab, all Mrs. Manoj Singh, Sharad Pradhan ji, all our friends. This is an occasion to welcome Manoj here, and whatever he told us today was so impressive, and even I didn't know a lot of things. I mean, Jaywar is starting in March. I mean, wonderful, and the kind of vision that he shared with us. So that is typical of Manoj. I have seen him very closely, and let me tell you, those were the days. Probably the best ever Kumbh was organized, and he was a person who got it done. And wherever he's been, and I've been, we've been working very, very closely together. I have been seeing him for past almost 35-40 years. So his working style is something. What Alok Ranjan ji said, he believes in implementation. What he says, he gets it done. So we're very fortunate that he is the Chief Secretary. That's the first thing I told him, that it's so good good for the state that you come here as Chief Secretary, and I'm sure that a lot of improvement, lot of speed in implementation will come once you join here. So once again, I welcome him here, and it's great that we have a chairman in this club, Manoj Singh as the chairman. So thank you very much, and once again I welcome you. Thank you, and now request Mr. J.S. Mishra ji to come and share his experience of being the chairman of the club. यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे श्री आलोक रंजन जी, अनूप जी, और आज के हमारे चेयरमैन जो हमारे मुख्य अतिथि हैं यहाँ, श्री मनोज कुमार सिंह जी, शरद जी, गोपाल जी, मिसेस सिंह, और हमारे सभी सदस्यगण। मनोज जी के इस तरह से बहुत स्पष्ट ढंग से जो शासन की, प्रशासन की जो दिशा है, जो स्थिति है, और जहाँ जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ढंग से आप लोगों को बताया। कदाचित अब मेरे स्तर पर बहुत कुछ कहने को शेष नहीं है, लेकिन चूँकि मनोज यू हैव बीन एट पीलीभीत आल्सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सो आई थिंक मैं वहाँ रहा हूँ 2 साल तक। हमने भी थोड़ी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से जो उसके बाद मैं बहुत फॉलो नहीं कर सका हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही थी जब इन्होंने शुरुआत की थी एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पीलीभीत करीब करीब सबसे छोटे ज़िलों में है, शायद हो सकता है रामपुर छोटा है, पीलीभीत छोटा है, आई डोंट नो दैट थिंग, लेकिन एक बहुत बड़ी छाप इन्होंने छोड़ी जो लोग को समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। मैं अब आप लोग बहुत कुछ सुनने के मूड में नहीं होंगे, मैं केवल मनोज जी के लिए कुछ पंक्तियाँ अपनी जो मेरी लिखी हुई हैं, शायद गोपाल सिन्हा जी के स्थित जी रहती है हालांकि, तो वो ये है कि हम सभी सपने देखते हैं। स्वप्न एक ऐसा शब्द है, ड्रीम, ख्वाब, कि जो हमें बहुत ही अलग तरह से रोमांचित करता है।
तो मुझे नहीं मालूम कितना मुझे याद आएगा, बहुत पहले की मेरी कविता और एक चांस की बात है कि ये पोइट्री भी पीलीभीत में ही लिखी गई थी। वो ये है कि लेट मी सी वेदर आई कैन गेट इट, बाकी तो 2-4 लाइन याद ही होंगी। ये मनोज जी को आज समर्पित है, डेडिकेटेड है, उनके जो उन्होंने किया है उसका भी इसमें संकेत है और जो उन्हें करना है उसका भी संकेत है कदाचित। हालांकि ये जिसमें जो मेंबर हैं यहाँ के सभी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर हैं, ये पोइट्री आप सबके लिए सही है और स्पेशली जो मंच पर बैठे हुए हैं उन सब ने अपने अपने क्षेत्र में एक इतिहास बनाया है, एक व्यक्तित्व है, एक उनका कृतित्व है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पोइट्री पढ़ता हूँ आपके सामने कि स्वप्न से अभिसार मेरा, स्वप्न से सानिध्य मेरा, स्वप्न से सानिध्य मेरा, स्वप्न से अभिसार मेरा, स्वप्न ही मंजिल है मेरी, स्वप्न ही व्यापार मेरा। मैं दीवा स्वप्नों का प्रणयी, स्वप्न मेरे सखा सचर, स्वप्न ही मेरी धरोहर, स्वप्न ही संसार मेरा। और हिस्ट्री क्या है कि भाग गए जो स्वप्न में, उनको धरा पर ला चुका हूँ, आज तक अनगिनत सपने जी चुका हूँ, गा चुका हूँ। प्रक्रिया क्या है कि स्वप्न को अंतर मिलाना, स्वप्न को निज दृष्टि देना, स्वप्न को अंतर में लाना, स्वप्न का श्रृंगार कर उस स्वप्न को पूजा बनाना। इस कला में मैं निपुणता जगत को दिखला चुका हूँ, आज तक कोटिशः सपने जी चुका हूँ, गा चुका हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। यहाँ बहुत कुछ करना शेष है और जहाँ तक क्लब की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं कदाचित गोपाल जी की अनुमति से और आपकी भी अनुमति से ये कह सकता हूँ कि हम लोग जहाँ भी आप चाहेंगे, जो इस तरह का भी कोऑपरेशन चाहेंगे, क्लब ऑफ लखनऊ, जैसा कि अभी आलोक रंजन साहब ने कहा, बहुत ही जागृत और इंटेलेक्चुअल्स का क्लब है। वी शैल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड और बिसाइड्स यू और मे बी बिहाइंड यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, and now I invite Mr. Sharad Pradhan to deliver the vote of thanks. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत ही खुशी का मौका है और इतना सब कुछ कहा जा चुका है, तो लेकिन ये औपचारिकता है जो मुझे निभानी। एंड आई एम रियली ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मिस्टर मनोज कुमार सिंह फॉर हैविंग एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ दिस क्लब by becoming the chairman today। और हमें ये बड़ी, जिस तरह से लोग आज यहाँ सब मौजूद हैं, आज बड़े इंतज़ार में थे, क्योंकि जनरली हम लोग का कई दफ़ा ये लंबे गैप्स हो जाते हैं और वी आर वेटिंग, जब से, क्योंकि आप आए थे, जब तक आप ये टेक ओवर नहीं करते तब तक ये आज की इवेंट नहीं हो पाती। सो नहीं, अब जनरली जितने चीफ सेक्रेटरीज रहे हैं सब ने बहुत इंटरेस्ट है और सुब्रमण्यम साहब की वजह से ही ये स्टार्ट हुआ था। और एज मिस्टर आलोक रंजन हैज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि किस मकसद से हुआ था। और बहुत यहाँ पे जितने इतने पुराने लोग हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, देर आर डॉक्टर्स, देर आर बिजनेसमैन, एंड देयर इज़ वन रियली वेटरन पुलिस ऑफिसर हियर जो अभी आए तो थे मुझे, मिस्टर R.K. पंडित, जो I think he must be the senior most citizen with the club and a very active person। Really grateful to you also for making it। आप हमेशा आते हैं, so nice, so nice of everyone। And once again I am also very grateful, in fact Mrs. लक्ष्मी सिंह की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे। मनोज जी ने कह दिया था कि जब तक आप नहीं आएंगी तब तक इन्हें हम लोग नहीं आएंगे। दैट स्पीक्स ऑफ द तो ये भी जो कहा जाता है ना कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन, देयर इज अ वुमन। तो हियर शी आर, एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल कि दैट इन मिसेस सिंह की फ्रेंड हैं जो कि पीलीभीत की रहने वाली हैं, वो भी आई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड मेरे ख्याल आई शुड नॉट बिकम अ बैरियर between this part of the hall and the other part which is more attractive।
So I invite on behalf of the club for drinks and dinner. Thank you.